جناح یونیورسٹی برائے خواتین کا 23واں کانوکیشن تقسیم اسناد کی تقریب گورنر سے نہال ہاشمی کانوکیشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ یہاں اکرم خاتون بیٹھی ہیں، واو، میں ان کے آگے اشر اشیر ہوں، ہماری پراؤڈ ہے یہ، پہلی پریزیڈنٹ آف اے ویمن بینک، اور یہاں پہ نہیں معلوم کتنی فاطمہ جناح بیٹھی ہوں گی۔ اپریسیشن چاہیے بی سی صاحب، اپریسیشن چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں بچہ یا بچی چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم زمین پہ بیٹھ کے اس کو بتا ایک قدم اور آگے آؤ، ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو سارے قدم آگے آ چکی ہیں، they are PhDs, they are masters, they are MPhils. So we need to stand up and say welcome you. All of you should stand up and say your daughters and your sisters that we are proud of you. We are proud of Akram Khatun. ہم احسان نہیں کرتے، آپ کو عزت دیتے ہیں۔ سب تالیاں بجائیں اپنے آپ کے لیے، یہ ماشاء آپ کے لیے تالی بجائے نہ بجائے۔ Here you are, here you are. یہ شوق شبہ تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت حسین دن ہے۔ You earned it. چیریٹی تھوڑی کیا آپ کو، چیریٹی میں تو آپ کو یہ ڈگریاں نہیں ملی ہیں۔ You earned it. جہاں انہوں نے آپ پہ محنت کیا، آپ نے بہت محنت کی ہے۔ آج آپ کے والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ میری پہ پہنچ گئی ہے، پورے معاشرے کو پتا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں آپ سے چاہیے، اگر محمد علی جناح جن کے نام سے یہ یونیورسٹی قائم ہے، اگر وہ اپنی لاڈلی بہن فاطمہ جناح کو نہ پڑھاتے، نہ مقام دیتے، تو آج فاطمہ جناح کو کون جانتا؟ اور ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ اسلامی تاریخ سے اگر ہٹ جائے اور پاکستان کی بھی تاریخ میں آئے، واو، کیا بڑے بڑے نام دیا ہے پاکستان میں۔ فاطمہ جناح سے لے کر کے مریم نواز تک آپ ہر شعبے میں آگے ہیں۔ آپ لوگ جانتی ہیں بے نظیر کو، وہ آپ ہی کے جینڈر سے تھی، کیا بریو زندگی گزاری۔ واٹ اے بریلینٹ پالیٹیشین اینڈ مدر اینڈ اے ڈاٹر اینڈ اے سسٹر۔ آج پاکستان میں جب ہم مقابلہ کرتے ہیں گورننس کا، جہاں 4-5 وزیر اعلیٰ مرد ہیں، وہاں پہ ایک خاتون ہے، مریم نواز۔ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، گورننس دیکھو مریم نواز کی، گورننس دیکھو پنجاب کی، ڈیولپمنٹ دیکھو وہاں کی۔ کب یہ ملتا ہے اعزاز؟ جب آپ کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے، جب آپ پہ اعتماد کیا جاتا ہے، آپ کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں، آپ پہ فخر کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، حلیمہ سعدیہ نے کیا خوبصورت نعت سنایا، معروف نے سنایا، دل مولیا۔ اللہ آپ کے سوز میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے گلے میں بہت کچھ دے۔ میں گنگنانے لگا تھا، جب آقا نامدار کا ذکر آئے اور دل کو چھو جائے تو آپ بھی پھر وہ نعت گنگناتے ہیں، آپ بھی اسے دہراتے ہیں۔ تو آپ کو فخر ہونا چاہیے وائس چانسلر صاحب، آپ کو فخر ہونا چاہیے وجی صاحب کہ آپ کے پاس مایہ ناز طالب علم ہے۔ پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں، آج سے کچھ عرصے پہلے کہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ عورت کو برقعے میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، شٹر برقع کہتے تھے۔ اب ہم تو جواب نہیں دیں گے نا، آپ پہ بات آپ پہ ہے تو جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے۔ آپ کو جناح یونیورسٹی نے اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ پوری دنیا کو، مغرب کو بتائیں کہ ہم با اختیار ہیں اور با اختیار تھے اور انشاءاللہ با اختیار رہیں گے۔ محفلوں میں جا کے گنگنا کے کوئی آزاد اور خود مختار اور ماڈرن تھوڑی ہوتا ہے۔ ماڈرنائزیشن دیکھنا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جا کے سیکھو۔
کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر آقا نامدار کی حوصلہ افزائی کی، کس طرح سے تجارت کو فروغ دیا، کتنی بااختیار عورت تھی ہماری. اور پھر آپ کو ہی کھڑا ہونا ہوگا اپنے آپ کے لیے. وجی صاحب بہت شاندار بات کر رہے تھے جب وہ اپنے والد صاحب کے لیے بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ سب سے ذکر کروں گا، کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار کھڑے ہو کر کے جناب حضرت ریاض الدین صاحب، میں حضرت اس لیے کہتا ہوں جو لوگ بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں ان کو حضرت کہنا چاہیے. ایک فرد واحد، ون مین آرمی، اس نے آپ کو یہاں جمع کر دیا. جناب ریاض الدین صاحب کے لیے بھرپور تعلیم ہونی چاہیے. وہ آپ سب کے، ہم سب کے لیے فادرلی فگر رہے ہیں. اور کیا گریٹ آدمی تھے. اپنے نام سے نہیں، کیا عشق تھا پاکستان سے اور جینا سے، کہ انہوں نے کہا کہ سر آپ کے نام پہ یونیورسٹی قائم کریں گے تو ہمیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اینڈ یو شوڈ بی ویری پراؤڈ آف اٹ کہ آپ کے نام بابا قوم کے نام سے منسوب ہے. جنا یونیورسٹی سے آپ تعلیم حاصل کر کے آ رہی ہیں. میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وجی صاحب نے کہا کہ شادی بھی کر لینا. انشاءاللہ سب کی بہت اچھی شادی ہوگی، اور جو مجھے بلائیں گی اپنی شادی میں ہاتھ اٹھائیں. کوئی بھی نہیں بلائے گی مجھے، ارے ہاتھ ادھر والی تو اٹھا دیں. جو مجھے شادی میں بلائیں گی وہ ہاتھ اٹھائیں. ادھر سے بھی اٹھ گیا. ادھر والے کنجوس ہیں کیا؟ زور سے بولو، بلاؤ گی نا، بلائیں گی. واہ، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے. مگر وہ جب بات کر رہے تھے شادی کی تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی کہ شادی تو ہو جائے گی، پھر ساس بہو کی کہانی نہ. جو ساس بہو کی کہانی کرے گی وہ ہاتھ اٹھائے، کوئی مت اٹھانا. ایک نے اٹھا دیا، دوسری نے بھی اٹھا دیا، اور جو ساس کو اپنی اماں سمجھے گی وہ ہاتھ اٹھا لے. اٹھا لو، کنجوسی نہ کرو. کیا خوش قسمت ہوگا وہ جوڑا جہاں یہ ساس کو اماں سمجھیں گی. ادھر سے بھی ہے کہ ادھر کوئی نہیں ہے، سب نے نکال دینا ہے کہ ان کو گھر سے. گڈ. نہیں فقیر تو شادی شدہ ہی ہے نا، ساتھ رہتی ہے، فارغ کر دیا. گورنر سے نہال ہاشمی کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، کراچی کے مختلف علاقوں میں 6 ماہ کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 215 افراد قتل ہوئے، جبکہ جون کے مہینے میں 3 خواتین سمیت 31 افراد کو قتل کیا گیا. قتل و غارت گری کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی ہیں. مزید بتائیں گے معراج اختر. جی معراج. کراچی میں فائرنگ اور قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے سٹی 21 نے ریسکیو ادارے سے تفصیلات حاصل کی ہیں، جس کے مطابق رواں سال کے 6 ماہ کے دوران میں اب تک 200 افراد جو ہیں وہ فائرنگ کی نظر ہو چکے ہیں، فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. جبکہ جو اگر ہم خالی جون کی بات کریں، جون کے مہینے کی، تو اس میں 31 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جن میں 28 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں. اور اسی طرح اگر ہم پورے رواں سال کے 6 ماہ کی بات کریں تو 776 ایسے افراد ہیں جو کہ فائرنگ سے اور گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خالی جون کی بات کریں تو 139 افراد ہیں جو کہ فائرنگ سے زخمی ہوئے، جنہیں مختلف جو ہے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. میں اس وقت موجود ہوں چیپا ویلفیئر کے ہیڈ آفس کے باہر، اور چودھری شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان. ان سے ہم پوچھیں گے کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس. السلام علیکم. شاہد بھی بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں رواں سال کی فائرنگ کے واقعات کچھ بڑھ نہیں گئے ہیں؟ رواں سال فائرنگ کے واقعات بڑھ گئے، جس میں ٹارگٹ کلنگ ہے، ڈکیتی ہے. اس بار ڈکیتی کے زیادہ تر واقعات ہوئے ہیں، جس میں 40 افراد اب تک جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں رواں سال میں. اور اگر بات کی رواں سال میں ٹوٹل ٹارگٹ کلنگ، ذاتی دشمنی وغیرہ اور ڈکیتی وغیرہ کی 215 افراد ایسے جو کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں زندگی کی بازی ہار گئے.
776 افراد ایسے ہیں جو رواں سال کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے، اور اگر جون کی بات کریں تو 31 افراد ایسے ہیں جو صرف جون کے مہینے میں جاں بحق ہوئے فائرنگ کے مختلف واقعات میں، جس میں ٹارگٹ کلنگ ہے، ذاتی دشمنی ہے، اس کے علاوہ ڈکیتی مزاحمت ہے۔ 139 افراد ایسے ہیں جون کے ماہ میں جو صرف فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے، اس میں ڈکیتی بھی ہے، مختلف واقعات ہیں۔ چودھری شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ رواں سال ابھی تک 6 ماہ کے دوران میں 215 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جون کے مہینے میں 31 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اسی طرح رواں سال 776 افراد زخمی ہو چکے ہیں اب تک فائرنگ سے، اور اگر جون کی بات کریں تو جون میں اب تک 139 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تمام زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو مختلف اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ جی، کراچی ولیکا اسپتال میں HIV وائرس پھیلنے کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، عدالت سے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا، عدالت نے سیکرٹری ہیلتھ سمیت دیگر حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شوکت قرائی سے۔ جی شوکت، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، یہ ولیکا ہاسپٹل ہے جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے چلائی جا رہی ہے، اور یہ سیاسی ادارہ ہے، اس کے انتظام کے تحت یہ چل رہی ہے۔ یہاں پہ بچوں کو HIV وائرس انفیکشن کا معاملہ ہے۔ پہلے ان لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا کہ ایسے ڈاکٹر یا ایسا عملہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ تمام لوگ پھر سندھ ہائی کورٹ سے میں آئے اور انہوں نے درخواستیں دی کہ ان ڈاکٹرز اور عملے کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو HIV وائرس انفیکشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اجرن بن گئی ہے۔ تو آج ان کی سماعت تھی، اور آج اس کورٹ میں جو عدالت نے آرڈر دیا ہے کہ تحقیقات کر کے تمام ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ میرے ساتھ اسد راشدی لائر ہیں جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے اس کورٹ کے اندر، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج پروگریس ہوئی ہے، آج کورٹ نے سر کیا آرڈر کیا ہے؟ سر دیکھیں، کورٹ نے پراپرلی سنا، اور کورٹ نے معاملے کی گریوٹی کو بھی جو ہے وہ جانچا کہ HIV آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہلک بیماری ہے، اور یہ جس طرح سے پھیل رہی ہے، اور جس ہاسپٹل کا آپ نے حوالہ دیا وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ بھی جو ہے وہ ہم وکیلوں نے بھی ان کو اسسٹ کیا کہ سر سندھ گورنمنٹ جو ہے جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جس کو گورننس کہتے ہیں، جس کو حکومت کہتے ہیں، جس میں صحت آ جاتی ہے، جس میں روزگار آ جاتا ہے، جس میں سیکیورٹی آ جاتی ہے، یہ 3 فنڈامنٹل چیزیں جو آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہیں وہ دینے سے جو ہے وہ ناکام رہی ہوئی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ہاسپٹلس بناتے ہیں، ہاسپٹلس کے اوپر آپ کے جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ بیٹھتے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں آپ کو اسٹاف ہے۔ اس پروٹوکولز میں، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ جو میڈیسنز دے رہے ہیں، جو ایکوپمنٹ دے رہے ہیں، اس کی جانچ پڑتال آپ کو کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ فی الحال تو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے جو بچوں کے والدین ہیں ان کی مدعیت میں، لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر اس معاملے پورے کی تحقیقات کی جائے۔ جی، گزری میں شہری کے قتل مقدمے کی سیشن عدالت جنوبی میں سماعت ہوئی۔ ملزم کی جانب سے ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی، جس پر عدالت نے سرکاری وکیل کو نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ گواہان کی عدم حاضری پر ان کے خلاف بڑا حکم بھی دے دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ جی، گزری کے علاقے میں شہری کے قتل کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ملزم تنویر کو جیل حکام نے عدالت میں پیش کیا، جبکہ شریک ملزم عامر ضمانت پر عدالت میں پیش ہوا۔ سماعت کے دوران ملزم عامر کی تنویر کی جانب سے جو ہے وہ درخواست ضمانت دائر کی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ ایک ملزم کو اس مقدمے میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے، لہٰذا ملزم کو ضمانت دی جائے۔ ملزم جو ہے وہ تفتیش میں تعاون کرے گا۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر جو ہے وہ سرکاری وکیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عدالت نے جو کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اور جو MLO ہے، سرجن ہے، ان کو بھی خط ارسال کر دیے ہیں، جبکہ 2 گواہان کی عدم حاضری پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے جو ہے ان کے جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی بلاک کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے، اور آئندہ سماعت پر انہیں پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یاد رہے یہ مقدمہ جو ہے وہ ان ملزمان کے خلاف 2023 میں تھانہ گزری میں درج کیا گیا تھا۔ جی، خبر دیں آپ کو، محکمہ اسکول تعلیم میں متوافی کوٹے پر بڑی پیش رفت، اسکروٹنی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری، بیواؤں اور اولاد کی بھرتیوں کا عمل شروع ہونے کا امکان، کمیٹی درخواستوں کی جانچ پڑتال کرے گی۔ محکمہ اسکول تعلیم میں متوافی کوٹے پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوہریو سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، محکمہ اسکول تعلیم میں طویل عرصے سے نئی بھرتیوں کا عمل جو ہے خاص طور پر متوافی کوٹے پر وہ التوا کا شکار تھا، لیکن عدالت کے حکم کے بعد جو ہے
सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तलीमी वो मुलाजमिन जो जरा मुलाजमत वफात पा गए उनकी बेवाओं या उनके औलाद को मुलाजमत पर भर्ती करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के फैसले के बाद महकमा स्कूल तलीम ने स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तलीम के सरबराही में अमल दरामद कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमिक व ट्रेनिंग शामिल है। इनके अलावा डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज महकमा स्कूल तलीम, इसके अलावा महकमा कानून का नुमाइंदा भी मेंबर के तौर पर शामिल है। इनके अलावा मुतल्लिक महकमे का जो जिले जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा। महकमा कानून का फोकल पर्सन और डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल जो सेल स्कूल तलीम उनको भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। कमेटी महकमा स्कूल तलीम में मतफी कोटे के तहत जो दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं उनकी स्क्रूटनी करेगी। स्क्रूटनी के बाद में उन पर भी अमल दरामद का आगाज करेगी और जांच पड़ताल के बाद जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं जो मतफी कोटा पर पूरा उतरते हैं, जिसमें जो मुलाजम वफात पा गए हैं उनकी जो औलाद या बेवा हैं उनको मुलाजमत पर भर्ती करने का फैसला करके तमाम तरह इख्तियार जो है महकमा स्कूल तलीम ने इस अमल दरामद कमेटी को सुपुर्द कर दिए और स्पेशल कमेटी की सिफारिश पर तमाम तर जो है फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दीगर महकमों की तरह महकमा स्कूल तलीम भी मतफी कोटे पर नई भर्तियों का फैसला कर दिया और अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी कायम कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, सिंध सेक्रेटरीट में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का अक़लियती उमूर पर अहम इजलास जारी। इजलास में सेंटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और हिंदू कम्यूनिटी की अहम शख्सियात शरीक हैं। इजलास के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइए। जी देखिए, यहाँ पर सिंध सेक्रेटरीट में एक इजलास हो रहा है बहुत आला किस्म का। ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है अक़लियती उमूर के बारे में। लेकिन इस इजलास में सिर्फ सेनेटर्स नहीं है, सेनेटर्स के अलावा सूबा सिंध से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली भी शरीक हैं। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली भी इस इजलास में शरीक हैं और हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात भी जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। पुलिस के आला हुकाम, मुख्तलिफ डिवीजन्स के DIGs मौजूद हैं और DIGs की जानिब से अपने अपने इलाके में यानी अपने अपने डिवीजन्स में जो है अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। DIG लाड़काना और सखर आफ्ताब पठान ने एक ब्रीफिंग दी है जो हमने सुनी। उन्होंने पूरे डिवीज़न में अक़लियतों के साथ होने वाले मुकदमात की तफसीलात बताएंगे। डकैती या दिगर जो वारदातें हुई हैं उनके बारे में भी उन्होंने जो है वो बताया है। मजमूई तौर पे मुख्तलिफ अक़लियती अरकान की जानिब से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे एक बच्ची है प्रिया कुमारी जो अगवा हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। प्रिया कुमारी के सवाल पे भी यहाँ पे बहुत सारे मेंबरान ने सवाल उठाए हैं, लेकिन उसकी बाजियाबी के बारे में पुलिस के पास कोई भी मुतमईन करदा जवाब नहीं था। ये इजलास आज दूसरा रोज़ है जारी है, कल भी जारी था। कल IG सिंध के ना पहुंचने पर इजलास में बरहमी का इजहार किया गया था, लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह को इस इजलास में शरीक होना था लेकिन वो भी नहीं पहुंच सके। यानी सिंध हुकूमत का कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं जो हुकूमत का मौक़िफ़ बता सके। अलबत्ता सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शरीक हैं जिन्होंने वजाहत बताई कि चीफ सेक्रेटरी सिंध इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए। बहुत सारे मामलात हैं, अक़लियतियों की ज़बरदस्ती शादियों का मामला यहाँ उठाया जा रहा है, जो अक़लियती बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं। बच्चियों का गुमशुदगी के मामलात हैं उनको उठाया जा रहा है। अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ, अक़लियतों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े, इस तरह के और बहुत सारे अमूर हैं जो इस इजलास में उठाए जा रहे हैं। ये इजलास जो है अभी तक जारी है। मैं बताऊँ कि सेनेटर दिनेश कुमार हैं जिनकी सदारत में ये इजलास जारी है और इजलास के अख्ताम पर सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से कोई ब्रीफिंग दी जाएगी। जी, BRT रेड लाइन मंसूबे पर ट्रैफिक लेन का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर FW और मिक्स ट्रैफिक लेन की बहाली में मसरूफ़। पानी की ड्रेनेज का काम जारी है जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर भी काम तेज़ कर दिया गया। BRT कॉरिडोर कॉन्ट्रैक्ट ताहाल किसी को नहीं दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा से। जी अक्सा, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर के करीब बीआरटी रेड लाइन मंसूबे पर मौजूद हूँ। जैसा कि जो है वो ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो तब्दील करने की जो है वो हिदायत जारी कर दी थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है FWO को जो है वो मैदान में लाया गया और मिक्स ट्रैफिक लेन के लिए जो है वो इनको हिदायत जारी की गई कि 90 रोज में जो है वो मिक्स लेन ट्रैफिक को जो है वो बहाल करना है और पब्लिक के लिए जो है वो सहूलियात जो है वो मैसर लानी है। इस वक्त अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक ट्रैफिक की एक्सपो सेंटर के करीब, तो यहाँ से जो है वो एक जो है वो लेन जो है वो चलाई जा रही है, जिस पर जबकि अगर मिक्स ट्रैफिक लेन की बात की जाए तो FWO जो है वो तेजी से काम कर रही है। इस वक्त यहाँ पर सर्विस रोड पर जो है वो ड्रेनेज का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है और जैसा कि इनको हिदायत जारी की गई थी कि 90 रोज में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ में आया है उनको जो है वो मुकम्मल करना है। अलबत्ता अभी तक जो BRT के कॉरिडोर का कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक किसी से भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर अभी तक नहीं है। BRT के कॉरिडोर की बात की जाए तो वहाँ पर मशीनें लगी हैं लेकिन काम रुका हुआ है। अलबत्ता जो मिक्स लेन ट्रैफिक का जो मुआहिदा था जो FWO से किया गया था उस पर जो हम देख रहे हैं उससे मुतालिक जो है वो काम किया जा रहा है, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम हो। ड्रेनेज के साथ साथ हम आगे के हिस्से की बात करते हैं तो वहाँ पर बुनियादें भी जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो डल चुकी हैं, आगे का हिस्से का जो है वो काम किया जा रहा है। और जब हमने इनसे बात किया तो इनका कहना यही है कि काम थोड़ा जो है वो इस वक्त मुश्किल यूँ है कि जो लाइन्स हैं वो काफ़ी पुरानी है, यहाँ पर 70 से 80 साल पुरानी जो है वो यहाँ पे पाइप लाइनें डली हुई हैं। चाहे वो वायर्स की भी बात की जाए, यूटिलिटीज़ वायर्स की, तो उससे मुतालिक जो वो थोड़ी सी काम में दुश्वारी है, लेकिन अलबत्ता जो वो काम को 24 घंटे किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी खबर दें आपको, अमेरिका ईरान बालवास्ता मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर। ब्रेंट ऑयल और अमरीकी खाम तेल में नुमायां कमी, 4 माह की कम तरीन सतह पर ऑयल रेट्स पहुँच गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। देखा जाए पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इन खबरों पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जो हैं वो अमरीकी और ईरान जंग से पहले के रेट तक गिर गई हैं। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पे आ गई हैं। अमरीकी खाम तेल जो 1% कमी से $67.91 फी बैरल तक गिर गई हैं। साथ ही लंदन ब्रेंट ऑयल जो कि बेंचमार्क कहलाता है वो भी तकरीबन 1% कमी से $70.93 फी बैरल तक गिर गई हैं। देखा जाए कि अमरीका और ईरान जंग से कबल 27 फरवरी को अमरीका खाम तेल जो है $67 फी बैरल पर था, जबकि अमरीकी जंग से कबल जो है लंदन ब्रेंट ऑयल 27 फरवरी को $72.48 फी बैरल पर था। उससे देखा जाए लंदन ब्रेंट ऑयल जो है आज उससे आलमी मार्केट के रेट से जो जंग से कबल के रेट पर आ गई है। पाकिस्तान में माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते देखा गया था कि उसका इस्तेहकाम रखा गया था, लेकिन इस जुमे को कहा जा रहा है कि बड़ी कमी होगी। नासरीन, शहर की मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाकों में शुमार होने वाली SM तौफीक रोड की तामीर का अधूरा मंसूबा शहरियों और ताजिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। सड़क पर जारी सुस्त रफ्तार काम के बाइस धूल, मिट्टी और गर्दो गुबार ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए हैं, जबकि ताजिरों का कहना है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं SM तौफीक रोड पर। SM तौफीक रोड जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अहम तरीन शाहराहों में तस्वुर की जाती है। मुतादिद कारोबारी मराकज़ है यहाँ पे और लाखों की तादाद में यहाँ से लोगों का गुजर होता है। तकरीबन 3 माह कबल जो है इसकी सड़कों की, दोनों तरफ की सड़कों की मरम्मत का काम का आगाज हुआ था और एक जानिब सीवरेज की लाइन भी डाली गई थी, लेकिन ये काम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क तामीर नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में गर्द गुबार का तूफान, ट्रैफिक जैम, हादसा और ताजिर जो है वो शदीद परेशान है। अंजुमन ताजिरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर हसीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीन साहब, बताइएगा, सड़क जो है वो ताखीर का शिकार हो गई है, तामीर में क्या मुश्किलात हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 3 माह पहले ये इन्होंने काम शुरू किया था, हमने भी इत्मीनान का इजहार किया था कि चलें शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, काम तो शुरू हुआ, लेकिन वही बदकिस्मती है हमारे शहर की कि यहाँ तरक्याती काम का आगाज अव्वल तो होता नहीं है, और अगर हो जाता है तो फिर उसकी तकमील के लिए एक बहुत तवील इंतजार करना पड़ता है और तवील अजियत का शिकार इस वक्त दोनों तरफ हमारे मार्केट हैं, हजारों दुकानें, आने जाने वालों के लिए किस अजियत है। आप लोग भी आए हैं, हम भी आते हैं गुजरगा,
जब हम 10 नंबर से घुसते हैं तो धूल और मिट्टी का एक तूफान है और डाकखाने तक ये पोजीशन है, इसी तरह सामने वाले रोड अच्छा, ये धूल मिट्टी के तूफान से लोग बता रहे हैं कि उन्हें मुख्तलिफ अमराज सांस के हो रहे हैं, वो तो समझ में आती है बात। ये बताइए कि ये कारोबारी मराकज जो हैं उनका जो माल वगैरह रखा हुआ है उसको कितना डैमेज कर रहे हैं ये धूल और गर्दो गुबार? देखिए, आप देखें फैंसी सारी यहाँ दुकानें बनी हुई हैं और कुछ सामने कपड़े की दुकानें, तो आप समझते हैं कि मामूली सी भी धूल मिट्टी बड़ा मुतासिर करती है, लेकिन ये तो आप रोज से मुस्तकिल बुनियादों पे सुबह से शाम तक यही काम होता है कि वो धूल मिट्टी झाड़ते रहें। दोनों तरफ की शाहराह को जो है वो तामीर किया जाए ताकि आवाम को फैसिलिटेट करने के साथ साथ यहाँ के ताजिरों को भी जो है मुतमईन किया जा सके। जी, चावल की एक्सपोर्ट के हवाले से अच्छी खबर, हुकूमत ने राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का बड़ा मुतालबा मान लिया। हुकूमत ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के तहत DLTL स्कीम के जरिए चावल बरामद कुनंदगान को मजीद 90 रोज़ की तोसी दे दी। साबिक सदर राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन रफीक सुलेबात ने कहा है कि हुकूमत के इस फैसले से चावल की एक्सपोर्ट $3 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। और उस मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि राइस के ऊपर जो DLTL दिया गया था, जो 30 जून को ख़त्म हो गया है, उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए फर्दर 90 डेज के लिए। और इसमें यह भी फैसला किया गया कि जो नॉन बासमती के ऊपर 3% का DLTL मिल रहा था उसको 5% कर दिया गया है और बासमती को उसी तरह 9% के ऊपर रखा गया है। ये बड़ी खुशाइन बात है। ये राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पिछले हफ्ते के अंदर ये हमने रिक्वेस्ट की थी थ्रू मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए और जो नॉन बासमती के ऊपर 3% किया गया है इसको बढ़ाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि नॉन बासमती को 5% कर दिया गया। आज की मीटिंग हमारे चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फैसल मलिक जहांगीर ने अटेंड की। 14 साल बाद सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए। अली हसन बरोही सदर, याकूब कादरी, एडवोकेट दलीप सिंह सेक्रेटरी मुंतखब कर लिए गए हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी, मैं मौजूद शहर कायद में और यहाँ पर आज ख़ास बात हुई है। तवील अरसे बाद सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन हो चुके हैं। बिला मुकाबला उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। हसन अली बरोही जो हैं वो मुंतखब हुए हैं सदर, और उसके अलावा जो दलीप सिंह साहब हैं, एडवोकेट दलीप सिंह, वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के मुबसरीन ने भी शिरकत की और तमाम इलेक्शन के मामला का जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं सदर साहब, हम पहले उनसे बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं बिला मुकाबला इंतखाब हुआ? जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ इन सब का जो यहाँ पे ऑलरेडी खिदमत कर रहे हैं बास्केटबॉल की, और मुख्तलिफ अजला और डिवीज़न से, ऑब्वियसली रादर डिवीज़न से आए रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने सिलेक्शन की और इलेक्शन हुई बाकायदे अंडर द ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, उनके ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन के अंडर हुई ये सारी इलेक्शन। और मैं बड़ा मशकूर हूँ उन लोगों का, ऑब्जर्वर्स का, और उन लोगों का भी जिन्होंने हम लोगों को मुंतखब किया यहाँ पे एज ए सदर। दलीप साहब क्या कहेंगे, इलेक्शन हो गए बिलाखिर? शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बास्केटबॉल की फ़रोग के लिए काम करेंगे, और बास्केटबॉल के जो काफ़ी अरसे से इलेक्शन मुतवक्कत है तो वो आज अपने तकमील तक पहुँचे, और हम पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे आके हमारी इलेक्शन करवाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सली ये इलेक्शन हो गया हमारा, और आपने देखा कि पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की निगरानी में इलेक्शन हुआ, और सिंध ओलंपिक से हमारे असगर बलोच साहब भी तशरीफ लाए थे। तो अब हम इनकी तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सुना आपने कि बास्केटबॉल सिंध के अहदेदारों ने अपने अज़्म का इज़हार किया। उन्हें उम्मीद है कि वो सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बास्केटबॉल एक बार फिर अच्छी ट्रैक पर आएगी और ज़्यादा टैलेंट सामने आएगा, मुख्तलिफ मुकाबलों की रौनक होगी। गर्मियों की छुट्टियां हों तो बच्चे खेलकूद और तफरीह की तलाश में रहते हैं, लेकिन कराची में एक ऐसा समर कैंप भी जारी है जहां तफरीह के साथ ज़िंदगी बचाने की एक अहम महारत भी सिखाई जा रही है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग समर कैंप में तैराकी सिखाई जा रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमाद।
KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों और बच्चियों को जो है स्विमिंग की तरबियत यहाँ पर दी जाती है। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जो है वो तफरी और जो है वो खेल का जो है वो इंतज़ार करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में जो इनको कोई ना कोई तफरी का मौका मिल सके। तो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है स्विमिंग का समर कैंप जारी है, जिसमें बच्चों को जो है तैराकी से आश्ना होने के लिए जो यहाँ पर गुर सिखाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोच हैं यहाँ पे, इनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा हीरा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो बच्चा जो नया बच्चा होता है वो पानी में जाने से डरता है, तो उसको जो है सबसे पहले उसका डर कैसे निकाला जाता है पानी के, ताकि वो पानी में जाए और उनका जो तवाज़ुन होता है वो पानी में किस तरह बरकरार रख सके, उसके लिए बच्चों को किस तरह आप लोग ट्रेन करती हैं? जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रहे होते हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही होती है, उनको आप लोग सबसे पहले कैसे कोशिश करते हैं कि वो पानी में जाए और अपना डर निकाल सके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा है। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे को हम सबसे पहले पानी में लाकर ये ना करें कि आप स्विमिंग करना स्टार्ट कर दें। हम बच्चों को पानी में लेके जाते हैं, पहले देखते हैं कि बच्चा किस नौइयत पर है, कि वो डर रहा है या वो पानी में स्विमिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर हम बच्चों को देखते हैं कि वो हाँ पानी में कंफर्टेबल है, फिर हम उसको आराम से उसको ब्रीथिंग करना सिखाते हैं, सांस लेना सिखाते हैं ताकि वो पानी में स्टे कर सके, बबल्स बनाना सिखाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते फिर हम आगे की मूवमेंट्स कराना शुरू करते हैं, और फिर जब बच्चा थोड़ी मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है फिर उसको हम कंप्लीट मूवमेंट्स सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पानी में जाने से डरते हैं, तो कुछ बच्चे आपके पास ऐसे भी आते होंगे कि वो बिल्कुल पानी में नहीं जाते, तो उनको आप किस तरह जो है वो मना के पानी में लेकर आए? पेरेंट्स भी डरते हैं, लेकिन पेरेंट्स को किस तरह मनाया जाता है कि नहीं बच्चा आपका कर लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चा डर रहा होता है तो पेरेंट्स भी डरा हुआ होता है, तो पेरेंट्स हमसे ये चाह रहा होता है कि हम बच्चे को सेटिस्फाइड करें। तो हमारा काम ये होता है कि हम बच्चे को ये बोलते हैं कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं सिखाया जा रहा, हम आपको सिर्फ खिला रहे हैं पानी में। तो हम पानी से उनको पहले कंफर्टेबल करते हैं, उनको खिलाते हैं पानी में। जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, फिर हम उसको कुछ सिखाना शुरू करते हैं। तो हर साल जून जुलाई में गर्मियों की छुट्टियों में जो है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये समर कैंप लगाता है, जिसमें बच्चे जो यहाँ पर आके स्विमिंग की तरबियत सीखते हैं। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में 1622 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स ने 1,85,000 की सतह अबूर कर ली है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। देखिए, गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 नफसियाती हदें बहाल हुई थी, और आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है, सरमायाकार मुतहरिक हैं और मार्केट में शेयर्स की लेन देन का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा, पिछले 2 दिनों में मोमेंटम बहाल हुआ है, कल भी हमने देखा लगभग 4000 के लगभग पॉइंट्स का इजाफा, आज भी तेज़ी। जी देखिए, मसली वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल अब अच्छे की तरफ जा रही है, तो इससे भी जो इन्वेस्टर है वो खासे मुतहरिक नज़र आते हैं, इसकी वजह से बाइंग हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा आज के उसमें कि इंडियन पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना असर वसर रखते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोदी को ये ख़त लिखा है कि जैसे ईरान अमेरिका बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान और इंडिया की क्यों नहीं हो सकती। ये भी एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तानी मार्केटों के लिए, इंडिया की मार्केटों के लिए। तो ये अगर ये भी हो जाता है तो मार्केट इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छा ऊपर जाएगी। मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल के बाद जहाँ जंग के बादल थे वो अब छट चुके हैं। इन तमाम डेवलपमेंट के बाद देख रहे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ पर सरमायाकार मुतहरिक हुए हैं।